चलिए दर्शकों नमस्कार, मैं आनंद मोरंग आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करता हूं। फिलहाल हमारा थीम अरुण भूमि आप पहुंचे है जो हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज है पासीघाट के सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम पे। यहां पे आप वहां देखिए कि एक वहां पे आप दिखाई देगा, वहां पे बैनर टंगा हुआ है जहां पर एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो कि आदि स्टूडेंट द्वारा जितने भी हमारे प्रदेश के आदि समुदाय के जितने भी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10 और 12 पे टॉप किए हुए हैं, उनको यहाँ पर उनके अच्छे मार्क्स लेने के कारण उन्हें यहाँ पर प्राइज़ दिए जा रहे हैं और प्राइज़ देने की यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, जिन पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे जो अरुणाचल विधानसभा के जो स्पीकर हैं पीडी सोना सर जी आए हैं और आने वाला है। और साथ ही साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हमारे जो स्वस्थ एवं जो परिवार कल्याण के जो मंत्री हैं श्री आलो लिबांग जी, वो भी आने वाले हैं। और सम्मानित अतिथि के तौर पे यहाँ पे तापिर गाव जी जो कि अरुणाचल प्रदेश के एमपी है, सांसद है, अरुणाचल ईस्ट के सांसद है, वो सब आने वाला है। तो बिना समय के बातों हुए देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। दक्षिण में पकड़ दे। सारे मेरे जितने भी ऑडियंस है आप सबसे दरखास्त है, आप सब आज के हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि श्री पासांग दोरजी सोना सर जो कि ऑनरेबल स्पीकर हैं अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री आलो लिबांग, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड SJETA गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जब तक प्रेजेंटेशन का सिलसिला जारी है तब तक तालियों की गूंज भी जारी होनी चाहिए। Thank you so much, dear audience. You are the best audience I have seen so far. यूं ही तालियों की गड़गड़ाहट को आप बरकरार रखिएगा। Miss Lomnam Rukboy, she is from school GSS Mariang, Upper Siang. She is also from Upper Siang. I think Upper Siang is doing really well in CBSE board examination. And Miss Lomnam Rukbo has scored 79.4% in CBSE board examination. A huge congratulations to you and to your mother as well.
Kali. He is from Sainik School, Nikolok, and he has secured 92.6 percentage in CBSE board examination class 10. Ladies and gentlemen, तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए. We are encouraging a better future. By encouraging them, we are encouraging a better future. We have to keep that in our mind. Congratulations, Mr. Jing Bhai Tali, and congratulations to the parents. And now the second award for the toppers of the toppers is for class 12 science. And to give away the award, I would like to request the honorable chief guest of today's program, Sri P.D. Sona sir. And the winner of the topper of the toppers award for class 12 science goes to Mr. Botil Tang. I would like to welcome on the stage Mr. Botil Tang. Mr. Botil Tang is the son of Sri Obang Tang and Srimati Potal Tang. His school name is Intaya Public School, Rowing. And this young lad has secured 94.6 percentage. Congratulations, Mr. Botil Tang. You are doing really, really great. And may you keep up this performance, may you keep the consistency. Moving ahead, we would like to honor class 12 humanities topper. And to give away this award, I would like to request guest of honor, Sri Alolibang sir. And the winner of the class 12 humanities topper of the toppers award goes to Mr. Jonal Ratan. On this stage, I would like to welcome Mr. Jonal Ratan. Congratulations, Mr. Jonal Ratan. Look at this young lad. He's not just talented, he is quite handsome as well. All-rounder. And ladies and gentlemen, on the stage is Mr. Jonal Ratan receiving Topper of the Toppers Award from the guest of honors, Sri Alolibang sir. And he has secured 92.60% in the humanities class 12 board examination, which is quite impressive. And now it is time for us to give award to the toppers of class 12 commerce stream. And to give away the award, I would like to request the special guest of today's program, Sri Tapurgao sir, to do the honor. And the winner of class 12 commerce topper of the toppers award goes to Miss Yayang Payum. She is the daughter of Sri Kanak Payum and Srimati Huke Payum. She is from Namsai District, Government Higher Secondary School, Namsai. Yayang Payum, she is receiving Topper of the Toppers award from the special guest of today's program, Sri Tapurgao, Honorable Member of Parliament, Arunachal East. चलिए अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओस्तिन तायंग जी, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी क्रैक की है ऑल इंडिया रैंक 747 पाकर. तो सर सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो सर जैसे कि आज हमने यहाँ पे देखे कि एनुअल जो स्टूडेंट है जो अच्छा मार्क्स लेके इस क्लास 10-12 पास किए, उन्हें यहाँ फेलिसिटेशन की प्रोग्राम रखा गया है और आपको यहाँ पे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आपको यहाँ पे बुलवाया गया है. तो फिर आपको इस बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस फेलिसिटेशन प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है अभी बच्चों को इतना अच्छे मार्क में पास होते हुए देख के? ये बहुत ही अच्छी बात है और सबसे बड़ा अच्छी बात तो यही लगा कि लाइक 70% लड़कियां ही थे टॉपर्स ना. तो और मोर एवर द लास्ट प्रोग्राम थे टॉपर्स ऑफ टॉपर्स वाला, जो जिसमें उन्होंने शायद लैपटॉप दिया है. इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. लाइक ऐसे ही करते रहने से ठीक है. और मोर ओवर थैंक यू लाइक आदिशु ने मुझे बुलाया स्पेशल गेस्ट के कारण. और लाइक दिस वाज माय फर्स्ट टाइम बीइंग एन स्पेशल गेस्ट फॉर सम टाइम. एंड आपने अगर सुना होगा तो मैंने वही उसको डिस्प्ले भी किया था मोटिवेशन के लिए बच्चों को कि देखो स्पेशल गेस्ट बन सकता है बोल के. यू कैन ऑल्सो
ऑल्सो इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू अचीव समथिंग। सो मुझे अच्छा लगा यहाँ बुलाने के लिए। और वो सब खास करके वही सब लास्ट तक बैठे हैं ना स्पीकर सब ने, तो मुझे वही अच्छा लगा कि ऐसे बैठना, मतलब क्योंकि इट्स वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर अस। मैं जब क्लास 11 में था तब एक लोकल एमएलए से एक अवार्ड जीतते समय भी बहुत खुशी मिलती थी। ये तो इसमें जस्ट इमेजिन स्पीकर से तुम्हारा पूरा एमएलए साथ में पूरा बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है उसमें ना। थैंक यू। और जो स्टूडेंट जो शायद आज यहाँ नहीं आ पाए, या फिर ऐसे जो पब्लिक जो पेरेंट्स है जो अपने स्टूडेंट को बड़ा परवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आज के होने के नाते आप कौन सा मैसेज देंगे उन लोगों को? मैं वही बोलूँगा कि वही जो मैंने बोला भी था पहले कि एक पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और एक को ठीक रहना चाहिए। और स्टूडेंट्स लोग अपना पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस से बोलने से अच्छा से मतलब मत सोचो कि स्ट्रिक्ट नहीं होगा। और मोर ओवर लाइक मैं खुद ही लाइक JNB से हूँ, प्रोडक्ट हूँ। JNB पूरा 7 ईयर्स पढ़ाई किया है, तो और सेल्फ स्टडी से ही पूरा क्रैक किया है। 2 महीना से क्रैश कोर्स किया था कोचिंग। तो यू कैन ऑलवेज अचीव दैट, राइट? एंड मोर ओवर आई थिंक समवन has shared in that Hasib group or what, I think the chief auditor has shared that my motivation part is video also. If somebody has taken or somebody can see, उसमें देख सकते हैं, मैंने बोला है, बताया भी है थोड़ा इधर उधर। पता जिस्ट में वही बोलेगा कि मतलब फ्लो में रहना चाहिए पढ़ाई जब करते हो। एक एग्ज़ाम नहीं होता दूसरा एग्ज़ाम कंटिन्यू ट्राई करो, दूसरा नहीं होता तीसरा ट्राई करो, तीसरा हो गया फिर पहला वाला एग्ज़ाम फिर रिपीट आ जाएगा। तो ऐसा करके हमेशा फ्लो में रहो और हमेशा वो भूख रहना चाहिए लाइक कि आई हैव टू डू बेटर देन दिस बोल के। और लास्ट में देखेगा तो आप ऐसे एक स्पेशल गेस्ट में बुलाएंगे तो आपको वही अलग से खुशी मिलती है ना। लाइक यू कैन ऑलवेज बी लाइक इट शुड बी अ मोटिवेटिंग थिंग फॉर एवरीबॉडी। चलिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बोटिल तायंग जी हैं, लोअर दिबांग वैली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टॉप ऑफ द टॉपर का प्राइज़ जीत के अभी हाल ही पे निकला है ऑडिटोरियम से, जो कि एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम से अभी निकला है। इसलिए उससे हम आज उसका प्राइज़ मिलने के बाद अभी उनको कैसा फील कर रहा होगा, या फिर ऐसा प्राइज़ मिलने तक का उनका जर्नी, जो एजुकेशन जो पढ़ाई में इन्होंने हार्डवर्क किया है, वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपको स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा ये आदिशु जो हमें प्राइज़ दिया है ना, और मेरा पेरेंट्स जो हमको बहुत सपोर्ट किया है, और मेरा ब्रदर्स जो बहुत सपोर्टिव दिखा। तो मेरा 12 साइंस का परसेंटेज था 94.6 ना, 94.6। ये 94.6 के पीछे की कहानी मैं बोल देता हूँ। जब भी सालों हमको क्लास में पढ़ा था उसके बाद हम शाम में जाके मैंने सिर्फ एटलीस्ट ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ा था, एटलीस्ट मैंने 1-2 घंटा पढ़ता था, लेकिन वो कंसिस्टेंट था। मैंने पूरा महीना पर वही चलता था, ताकि जब बोर्ड्स का समय आया है वो समय तो पूरा दिन रात पढ़ाई करने लगा था, जिसका वजह से हम बहुत कम बाहर गए, जिसका वजह से अभी मेरा ये वांग है। तो अभी कैसा फील हो रहा है अभी इतना अच्छा मार्क्स मिलने के बाद? अभी आदिशु द्वारा आपको अच्छा खासा तोहफा या फिर प्राइज़ देने के बाद, फेलिसिटेट करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसके साथ बोतल के साथ साथ इनके पिताजी भी है, इनके पेरेंट्स भी है, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनका बेटा इतना अच्छा खासा मार्क्स लेके प्राइज़ मिलने के बाद उसको पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ओबांग तायंग। चलिए आपका बेटा आज आदिशु से फेलिसिटेट हुआ है, तो जिनका अच्छा खासा मार्क मिलने के कारण, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आपका बेटा, अपना खुद का बेटा इतना अच्छा खासा पढ़ाई पे अच्छा मार्क्स ले आया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? थैंक यू अरुण भूमि को कि आज मैं बहुत दिन से कोई किसी का इंटरव्यू मेरे को जो लेने वाला है तो कोई भी नहीं था, तो आज पहली बार अरुण भूमि ने लिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अरुण भूमि को और आपको। तो मैं सबसे पहले आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जब इसका रिजल्ट मैंने देखा तो बहुत खुशी हुआ। तो उसने मेरा व्हाट्सएप पे भेजा कि पिताजी मेरा इतना मार्क्स आया, तो मैं भी बहुत खुश। तो सबसे पहले मैंने इस तब में मिठाई खिलाया, चाय पानी खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को जाके परिवार हम लोग सब पोटी किया, केक को खटा, तो मैं बहुत खुशी, मेरा मिसेस खुशी, मेरा सब बेटा लोग सब खुशी। तो और मैं क्या बोलूँ, अभी ये फिर फ़िलहाल में एक सुपर डाटी ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे भी वो क्वालिफाई किया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं पापा मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मैं नीट पे ही जाऊँगा कि मैं MBBS में इंटरेस्ट हूँ। तो इन्होंने अभी नीट कोचिंग में अभी यहीं पे है पासीघाट में। तो
तो इसका ऊपर में है, अभी क्या करना है नहीं करना इसका ऊपर में है। चलिए धन्यवाद। बोटुल जी, आप आखिर में आपसे सुनना चाहूँगा कि जिस आपके जो जूनियर्स है, आपके जो आपसे जो छोटे वाले बच्चे भी होंगे, बहुत सारे हमारे ऑडियंस भी होंगे जो ये खबर देख रहा होगा, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपका जैसा अच्छे खासा मार्क लाने के लिए उन लोगों को मोटिवेशनल स्पेस आप अच्छे खासा मार्क लिए तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए आपका जूनियर्स को? सर मैं तो यही बोलूँगा कि 4-5 घंटा पढ़ते रहने का जरूरी नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि हम एक दिन में एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ने से भी बहुत काफ़ी है। एक दिन में 1 घंटा से पढ़ने से भी काफ़ी है। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आगे की आपकी पढ़ाई के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। जी सर। चलिए उसके बाद मैं आज इसी दिन पे अडीसू का जो जितना भी टीम मेंबर्स है मैं सभी को थैंक्स करता हूँ। उसके बाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी मौजूद है हमारे साथ अदीसू एपेक्स के सेक्रेटरी एजुकेशन जो कि आज के इस प्रोग्राम के मेंबर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं। तो उनसे भी हम आज के जो उन लोगों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसके विषय में उसके विषय में उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहिए। माय नेम इज़ कॉलिंग टली। तो जैसे कि अभी आज हमने देखा कि आप लोगों ने अदीसू यहाँ पे एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रख के इतने सारे बच्चों को प्राइज़ दिए जा रहा था, उसका मोटिव्स ये जो आप लोगों ने आज जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसका मोटिव्स हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। ऐसा कौन सा मोटिव इसलिए आप यहाँ पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है वो जानना चाहेंगे सर। ना ये जो आपका एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो हम लोग इस बार रखा गया है, एंड दिस प्रोग्राम विल बी इन एवरी ईयर। हम लोग का जितना हमारा टेन्योर होगा अडीसू का, ये हमारा कैलेंडर इवेंट प्रोग्राम होगा हमारा ये साल से लेके। तो हम लोग को जो ये यानी जो फेलिसिटेशन एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम है वो आपका मुताबिक हर साल किया जाएगा मतलब? हाँ जी हाँ जी। पहले इसके लिए आप लोगों को कितने स्टूडेंट्स को आज फेलिसिटेट किया? हम लोग आज को 100 प्लस हम लोग ये फेलिसिटेट किया है, नियरली अबाउट 102 समथिंग लाइक दैट। आप लोगों जो स्टूडेंट को फेलिसिटेट करने का आप लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो किस तरह आप लोगों ने चूज़ किया है? नहीं, हमारे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो जो हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में ही रखा गया है। जैसे कि ईस्ट सियांग में आपका क्लास 10 में हम लोग 3 स्टूडेंट दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद क्लास 12 साइंस आर्ट्स एंड देन आपका कॉमर्स में रखा गया है, और वो तो CBSE बोर्ड का है। एंड देन हम लोग जो अरुण बोर्ड का भी रखा गया है, क्लास 5 और क्लास 8 का में हम लोग रखा गया। बाद उसमें हम लोगों को ओनली फर्स्ट में हम लोग गया है। चलिए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते स्टूडेंट लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप आज अदीसू द्वारा आप लोगों ने जो प्रोग्राम आज रखा है वो बहुत ही अच्छा बात है। और आप लोगों को यहाँ ऐसे अमाउंट या टोटल अमाउंट कह लो, आप 100 से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को फेलिसिटेट करेंगे तो आप लोगों को खर्चा तो बिल्कुल होगा। तो उसमें आप लोगों को खर्चा के लिए आप लोग कहीं से डोनेशन वगैरह हुआ है, या फिर क्योंकि स्टूडेंट यूनियन जब SU का जब बात करता है, या फिर जब ऑडियंस जब SU का नाम सुनता है तो हमेशा लगता है कि उन लोगों ने पैसे के लिए की होगी। तो फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आज जो आप लोग का मोटिव था वो स्टूडेंट को सिर्फ ये करना था, प्रोत्साहित उसको मोटिवेट करना था, या फिर आप लोगों का कुछ ये भी था? नहीं, हम लोग का तो वही प्रोत्साहित ही करना था। और ये आपका एनुअल फेलिसिटेशन, ये इस बार का जो ये प्रोग्राम है, इसमें 101% आपका रेस्पेक्टेड बोइंग जिरबो आवर प्रेसिडेंट अदीसू एपेक्स का वो सारा खर्चा वो उठाया गया है, और रिस्क लिया है हम लोग बिना डोनेशन, हाँ अपना पॉकेट से लिया गया है, और बिना डोनेशन में हम लोग ये इस बार का ये प्रोग्राम को हम लोग फेलिसिटेट किया है। ऐसे सेक्रेटरी एजुकेशन, आपको लगता है जो आज का जो आप लोगों का जो अदीसू द्वारा आयोजित किया गया जो प्रोग्राम है वो सक्सेस हुआ, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सक्सेस हुआ है, बिल्कुल सक्सेस हुआ है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू।